at the Tarkarli beach as the Navy vessel, after giving the guard of honor to the Honorable Prime Minister to the tune of Sare Jahan Se Achha. हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बिल्कुल, जब हमारे पास ऐसे सैनिक होंगे जिनका जोश, जिनकी ताकत, जिनका उत्साह, जिनका दृढ़ संकल्प हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी नींद, आपके सपने पूरा करने के लिए हम, ये कहती है हमारी सेना हमसे। और जहाँ तक हम कार्यक्रम नौसेना सप्ताह की बात करते हैं तो 2023 के समारोह के रूप में यह आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2023 हमारे दृष्टिकोण में बदलाव का जो है पर्याय बन गया है, क्योंकि हम भारतीय नौसेना से औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशान हटा रहे हैं। ये देवियों, सज्जनों, प्यारे देशवासियों, Yes, indeed. And नौसेना दिवस भारतीय नौसेना के लिए एक पावन भारत. As we transit through the Amrit Kal, the Indian Navy is committed to promoting self-reliance in military technology to become self-reliant. India's momentous economic growth needs to be backed by suitable security measures as well. As we assure this security, the Indian Navy has also made an unequivocal commitment to become a fully Atmanirbhar organization by 2047. भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके लिए स्थान चुना गया है राष्ट्रीय सिंधु दुर्ग किला। आज आप भारतीय नौसेना के कुछ रोमांचक अभियानों, भविष्य की प्रौद्योगिकियों और कुछ आगामी क्षमता के प्रदर्शन को यहाँ पर सुन सकेंगे, जो हमें आपको बताएंगे, और यहाँ पर जो दर्शक उपस्थित हैं वो उसे देख भी सकेंगे। Yes, as the Honorable Prime Minister has taken his seat, we are now expecting the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, who will deliver the welcome address soon. We saw the rehearsal of today's program yesterday, and all I can say that it was absolutely stunning what the Navy has to show. And as we speak, we have the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, who is making his way to the stage to deliver the welcome address. एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इन्हें आमंत्रित किया जा रहा है और आप यहां पर अपना उद्बोधन देंगे। Chief of the Naval Staff, Admiral R. Kumar, who took the reins in 2021, is delivering the welcome address. of Bharat, Shri Ramesh Bhai ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Narayan Rane ji, Honorable Union Minister of MSMEs, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Ajit Pawar ji, Honorable Deputy Chief Minister, General Anil Chauhan ji, Chief of Defence Staff, distinguished dignitaries, Vice Admiral Dinesh Tripathi, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Flag Officers, guests, ladies and gentlemen, and most importantly, the people of Sindhudurg. Namaskar to all of you. It is a matter of great pride that we have our Honorable Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji, amongst us for this historic event. Pradhan Mantri ji, last year our indigenous aircraft carrier INS Vikrant was commissioned by you, और आपने नौसेना के नए निशान को भी अनवेल किया। भारत की विरासत से प्रेरित एक ऐसा निशान जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को दर्शाता है। नाम, नमक और निशान एक सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। हमारा ये नया निशान भारत के वीर योद्धा और महाराष्ट्र के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। After 300 years of subjugation, Chhatrapati Shivaji carved out Swarajya. He had the foresight to invest in sea power. Sindhudurg fort here is testament
of his important message, that is, Jalameva Yasya, Balaveva Tasya, or one who controls the seas is all powerful. A message that will serve our nation very well. आज हमारा देश एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की स्थिति में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारे प्रयासों के दो पहलू हैं। एक, राष्ट्र की सुरक्षा कहीं भी, कभी भी, किसी भी कीमत पर। दूसरा, राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति, राष्ट्र निर्माण हो या नारी शक्ति हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल हो या आत्मनिर्भर हो, नौसेना पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करेगी। On Navy Day, we look at the year gone by, acknowledge our achievements, study the setbacks, and determine the path ahead. 4 दिसंबर 1971 की वो रात जब हमारे मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आज भी हमें प्रेरणा देती है। While this operation was successful, what was important is the adoption of unconventional approach of deploying our missile boats acquired for coastal defense on offensive task. ये वही सोच है जिससे महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रचलित की गई गनीमी कावा या अंग्रेजी में गरिल्ला वॉरफेयर की नीति के नाम से भली भांति जानते हैं। It is with this out of the box mindset that we moved Navy Day celebration to Sindhudurg or to Karma Bhumi. So before concluding, I take this opportunity to convey to you, Honorable Pradhan Mantri ji and 140 crore भारतीय की भारतीय नौसेना देश के प्रति अपने कर्तव्य के लिए तैयार है, हरदम तैयार है और जी जान से तैयार है। जय भारत, शनो वरण। अभी आप सुन रहे थे एडमिरल आर हरि कुमार को, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतीय नौसेना जो है आत्मनिर्भर भारत के एक उपकरण के रूप में भी कार्य कर रही है। That was the Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, delivering his welcome address. And now, the Honorable Union Minister, Shri Narendra Rane, is being requested to present his address on this very special occasion today, the 4th of December, which is celebrated as Navy Day. Today, the celebrations are happening here at the Tarkarli beach in Sindhudurg district on the coast of Maharashtra. And as the Chief of Naval Staff rightly said, this is the Karma Bhumi, because it was Chhatrapati Shivaji Maharaj Government of India who built the Sindhudurg fort and who was a pioneer of naval warfare. But meanwhile, we have the Honorable Union Minister Shri Narendra Rane on stage right now. भारतीय नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र में कोकण में मालवण विभाग में सिंधुदुर्ग किले के ऊपर ये समारोह शुरू है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश के लाडले जननायक माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ये हमारे मालवण में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में जो किला बांधा, वो किले पर आकर नया जो राजकोट में महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा है, उनका अनावरण किया। और उसके बाद में हम इस तारकर्ली में आए हैं। मैं ये प्रथम नौसेना के सभी अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके यह आयोजन किया है।
और समझता हूं कि जो काम हुआ है 3 महीने में काम हुआ वो बढ़िया काम हुआ, मैं उनका अभिनंदन करतो. बंधू भगिनीनो, मी माननीय पंतप्रधानांची परवानगी घेतली, मी मराठीत बोलणार आहे की यासाठी हा परिसर सगळा मराठी माणसांचा आहे. 1664 साली या किल्ल्याच्या जागी छत्रपती शिवाजी महाराज आले. त्यांनी हा परिसर पाहिला आणि त्याला वाटला सुरक्षित परिसर आहे किल्ल्यासाठी, आणि मग त्यांनी हा या ठिकाणी हिरोजी इंदुलकरांना हा किल्ला बांधायला सांगितला आणि त्याप्रमाणे हा किल्ला बनलेला आहे. आपण पाहता त्याप्रमाणे रायगडी किल्ला इंदुलकरांना बांधायचा तोही बांधला. अनेक किल्ले त्यांनी वास्तू त्यांनी बांधल्या. रायगड किल्ला झाल्यानंतर तिथल्या सर्व व्यवस्था पाहिल्यानंतर माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुलकरांना म्हणाले, बोलवलं, त्यांनी म्हणाले, हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय, मी काय देऊ. आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले, साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे. परत महाराज म्हणाले, हिरोजी काय पाहिजे सांगा. मग हिरोजी म्हणाले, साहेब मला मंदिरा जरेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप आहे, पायऱ्या आहेत, तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या. मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या. त्यावेळेचे मावळे, त्यावेळेचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा, काय प्रेम होतं याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे. हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी समाजासाठी कसं द्यावं याचा प्रतीक आहे. माननीय पंतप्रधान 4 राज्याच्या निवडणुका देशात होत्या, 3 राज्याच्या निवडणुका जिंकून ते आज आपल्या मालवणमध्ये आलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करायला. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करीन, खूप खूप अभिनंदन करीन. आम्हाला प्राऊड आहे, घमेंड आहे आमच्या पंतप्रधानाबद्दल. जिथे जातील तिथे यश घेऊन येतील असा त्यांचा पायगुण आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी काल जो विजय मिळवला ते आतापर्यंतचा विजय, आतापर्यंत 9 वर्षाचं त्यांचं काम त्यांनी या देशातील जनतेला दाखवून दिलं. हा भारत देश एक आत्मनिर्भर बनावा, महासत्ता बनावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत. याला तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावे, सहकार्य करावं ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. साहेब बोलणार आहेत, मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण त्यांनी ते ज्या प्रकारे काम करतायत, मेहनत करतायत, कष्ट घेतायत, पाहता त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य आमच्या रामेश्वराने महादेवाने द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. The Honorable Union Minister Shri Narendra delivering his speech here at the Navy Day celebrations. He spoke about the Sindhudurg Fort and the role that Shivaji Maharaj had when Chhatrapati Shivaji Maharaj first came here, and he had that idea of building that fort which he entrusted Shri Hiroji Indulkar to do the job, and that fort built in 1664 still stands strong today. यहाँ इस अवसर पर अब जो है केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित किया जा रहा है, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं. नौसेना दिवस के इस अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए आप मंच की ओर बढ़ रहे हैं. आइए सुने. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर महाराष्ट्र आदरणीय रमेश वैश्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर श्री नारायण राणे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री अजीत जी पवार, चेयरपर्सन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल श्रीमती नीलम गोरे, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण,
श्री विनायक राउत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सानिध्य हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे नेवल ऑफिसर्स, हमारे सारे सेलर्स और उनके परिजनों को नेवी डे पर मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज आप द्वारा छत्रपति महाराज जी शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना हमारे लिए, मैं मानता हूं, यह सौभाग्य का क्षण है। साथियों, छत्रपति जी का पूरा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। छत्रपति शिवाजी ने अपने विजन से एक भविष्योन्मुखी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने तब के समय में भी नेवी के महत्व को पहचाना और भारत की समृद्ध नौसैनिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। साथियों, एक साधारण शासक और एक स्टेट्समैन में बड़ा अंतर होता है। एक साधारण शासक वर्तमान वास्तविकता के आधार पर ही वह दुनिया को देख पाता है, लेकिन एक स्टेट्समैन अपने वर्तमान से आगे देखने वाला विजनरी हुआ करता है। एक स्टेट्समैन आज की वास्तविकताओं से आगे जाकर भविष्य की संभावनाओं को भी देखने की वह क्षमता रखता है। छत्रपति शिवाजी सही मायने में एक स्टेट्समैन थे। नेवल पावर के महत्व को समझना उनकी स्टेट्समैनशिप को दर्शाता है। कॉलोनियल मेंटालिटी से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नेवी द्वारा अपनाया गया नया इनशाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की ग्लोरियस लिगेसी से इंस्पायर्ड है। साथियों, आज हम सभी नेवी डे के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। किसी भी मेजर ग्लोबल पावर के लिए एक सशक्त नेवी का होना यह अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी आर्म्ड फोर्सेस में नेवी पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है। अतः स्वराज्य को सशक्त करने के लिए एक लीडर के द्वारा नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यह दिखाता है कि वह लीडर वास्तव में एक विजनरी स्टेट्समैन है। साथियों, अब यदि आप यह सोच रहे हो कि मैं छत्रपति महाराज शिवाजी की बात कर रहा हूं या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही विचार अपने में बिल्कुल सही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हों या उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों में नेवी पर ध्यान देकर अपने राष्ट्र और समाज को सुरक्षित रखने का महनीय प्रयास देखा जा सकता है। साथियों, महज एक दशक पहले तक ऐसा माना जाता था कि देश जो भी थ्रेट फेस कर रहा है वह सिर्फ लैंड बेस्ड है और नेवी का उतना महत्व नहीं समझा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने इस सीमित सोच और पुअर असेसमेंट से कहीं ऊपर उठकर आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी पर भी विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया। आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। आज हम भारतीय नौसेना को कोस्टल नेवी से ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं। नेवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन सही मायने में प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। यह सब सारी उपलब्धियां आपके नेतृत्व में इस देश ने
हासिल की हैं। इसके उदाहरण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे भारत में जो सीमा के पास सटे हुए गांव थे, उनको संज्ञा दी जाती थी यह भारत के सबसे अंतिम गांव हैं। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज सीमावर्ती इलाकों में भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के वह गांव आज भारत के आखिरी गांव के रूप में नहीं, बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में वह जाने जाते हैं। साथियों, इसी प्रकार पास्ट में लंबे समय तक महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, मात्र इस पर विचार किया जाता रहा है। पर आज महिलाएं देश को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, इस पर विचार किया जा रहा है और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज इस देश की नारी शक्ति सेना से लेकर संसद तक हर भूमिका में देश के विकास में साझेदार बन रही है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को दिखाते हैं। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से बहुमूल्य समय हम सबके उत्साहवर्धन के लिए निकाला। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से नेवी के हमारे सेलर्स में एक नई उमंग और उत्साह भरने का काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस नेवी डे के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। जहां हम भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है अमृत काल से हम गुजर रहे हैं और भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनने के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। Yes, as we speak, the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, is making his way to the stage to present his address on this occasion of Navy Day. The celebration is happening here at the Tarkarli beach in Sindhudurg, Maharashtra. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण या प्रसंगी उपस्थित आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपले राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब, दोन्ही आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजित पवारजी आणि सर्व मान्यवर आणि उपस्थित नेव्हीचे प्रमुख हरी सिंगजी, त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित नेव्हीचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि या कोकणातील बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, शिवपराक्रमानं पावन झालेल्या या भूमीमध्ये मी या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं या महाराष्ट्राच्या 12.5-13 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। आज इस नौसेना दिवस के अवसर पर मैं हमारे भारतीय नौसेना के सभी अधिकारी और नौसैनिक भाई बहनों को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि कल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मोदी मैजिक सभी लोगों ने देखी है और इस ऐतिहासिक विजय के लिए
मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। इस देश में नेवी का कार्यक्रम है, फिर भी जो कल विजय हासिल हुई है इससे हमें खुशी है, और इसलिए इस देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये देशवासियों ने साबित करके दिखाया है। देश के जनता को, जनता के दिलों को जोड़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस महाराष्ट्र की धरती पे आए हैं, इसलिए हमें गर्व है, अभिमान है और आनंद भी है। पहले कहते थे हर घर मोदी, पर अब कहते हैं मन मन मोदी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज यहां पर सागर की लहरें हम देख रहे हैं, और कल पूरे देशवासियों ने भी मोदी नाम के लहर को भी देख लिया है। ये भी खुशी की बात है, और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में जितने सम्मान के साथ आज लोग ले रहे हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हमें खुशी है, और हम इसलिए भी खुश है कि आज महाराष्ट्र में आज केंद्र और राज्य के दोनों के सहयोग से इस राज्य का भी विकास हो रहा है। ये राज्य को भी सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में भी हमें केंद्र सरकार और मोदी जी की साथ है, और इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज नौसेना दिन के इस भव्य दिव्य समारोह में कुछ पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, उनके प्रतिमा का भव्य दिव्य स्वरूप में जो प्रतिमा वहां खड़ी है उसका अनावरण किया है, शुभारंभ किया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसा आज प्रतीत होता है कि आज पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा राष्ट्र इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन कर रहा है, उनके सम्मान में नतमस्तक हो रहा है। इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर के प्रकृति ने समुद्र तट की बड़ी महत्वपूर्ण सौगात दी हुई है, और ये हम सामने देख रहे हैं। इस धरोहर संपत्ति की रक्षा में जुटे, देश की जल सीमा की सुरक्षा में तैनात नौदल अधिकारी जवानों को मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। शिवाजी महाराज जी ने निर्माण किए हुए ये जल दुर्ग है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, गौरव के ये प्रतीक है, आणि म्हणून मी प्रधानमंत्री महोदयांच्या पुढाकारातून शिवछत्रपतींची राजमुद्रा भारतीय नौसेनेच्या ध्वजामध्ये समाविष्ट केली, त्याबद्दल देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो। ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसून आत्मनिर्भरतेचं सुचिन्ह म्हणून ही राजमुद्रा या ध्वजावर फडकू लागली आहे, अभिमानाने फडकती आहे। हा महाराष्ट्राचा अभिमान आणि गौरव आहे। आपल्या नौसेनेतील देखील एक ऐतिहासिक कामगिरी या करणाऱ्या आमच्या एका महिला अधिकारी देखील आहेत, आणि त्या महाराष्ट्राच्या कन्या आहेत। एका युद्ध नौकेचं ते या ठिकाणी नेतृत्व करतात। ही देखील बाब आमच्या सगळ्यांसाठी चांगली आहे, आणि देशातील महिलांच्या आत्मसन्मानाचं, आत्मनिर्भरतेचं नवं पर्व मोदीजींमुळे सुरू झालं, याचाही आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या देशाला आरमार दिलेला आहे। सिंधुदुर्ग किल्ला त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे।
आणि भारतीय आरमाराचे ते जनक आहेत, जनक होते. शिवछत्रपतींनी जगाचे डोळे दिपतील अशा अभेद्य जलदुर्गाची उभारणी केली. अभेद्य सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण नौसेना दिवस साजरा करतो आहोत. कोकणच्या किनाऱ्यावर बलशाली अशा भारतीय नौसेनेचं वैभव पूर्ण अवतरलेलं आहे. आणि म्हणून आज मी नौसेना दिन महाराष्ट्रात होतोय याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. शिवाजी महाराज मुत्सद्दी होते, धोरणी होते, युद्ध नीतीमध्ये तज्ञ होते, गनिमी कावा म्हणजेच आजच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे ते जनक देखील होते. आणि म्हणून त्यांच्या या नीतीचा, मुत्सद्देगिरीचा आजही जगभरामध्ये अभ्यास सुरू आहे. शिवछत्रपतींनी मोठमोठे गडकिल्ले बांधले, त्यांचं विजन, आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग त्या काळामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून छत्रपती शिवरायांना अभिप्रेत असलेलं हिंदवी स्वराज्य आणि सुराज्य निर्माण करण्याचा ध्यास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी घेतलेला आहे. आणि त्याची फळं आज देशातील जनता चाकत आहे. आणि म्हणून आत्मनिर्भर भारताचा वारसा शिवछत्रपतींनी दिलाय. तोच वारसा आणि वसा आपण सगळेजण पुढे घेऊन जातोय. आत्मनिर्भर भारत ते आता शक्तिशाली आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयास आलाय. जगाला भारताच्या सामर्थ्याचं दर्शन घडवण्याचा हा काळ आहे. आपल्या या सामर्थ्याची जगाने देखील नोंद घेतली आहे. आणि म्हणून नया भारत आत्मबलपूर्वक और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है. बलशाली भारत यह हमारी नई पहचान है. आणि म्हणून आज मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आदरणीय प्रधानमंत्रींचं मनापासून अभिनंदन करतो. नौसेना दिनासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यासाठी त्यांनी या ठिकाणी आपला अमूल्य वेळ दिला. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो. आणि पुन्हा एकदा शिवछत्रपतींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम करतो. आणि भारतीय नौसेना दिवसाच्या मी मनापासून आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के तारकर्ली के समुद्री तट पर आयोजित नौसेना दिवस के इस मौके पर आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को. Yes, that was the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, addressing the gathering here at Tarkarli Beach in Sindhudurg district, in the Konkan coast of Maharashtra. And now we are hearing an announcement that the next speaker is going to be the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who earlier unveiled the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at the Rajkot Fort, which is just very close to the Sindhudurg Fort, which was also built by Chhatrapati Shivaji Maharaj way back in 1664, and that fort still stands strong. And now, in a couple of moments from now, we will be listening to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who is here to address the gathering on the occasion of Navy Day. जी हाँ, नौसेना सुरक्षा का आश्वासन देती है और भारतीय नौसेना ने 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की जो है स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई है. क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों ही तरह की सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ हमारे हित के क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षेत्रीय नेवल की बढ़ती उपस्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि हम समुद्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं. हमने सावधानी पूर्वक अधिग्रहण योजना को आगे बढ़ाते हुए ऐसा किया भी है और इसका सबूत है नौसेना, जिसमें हर साल नए जहाज़ों, विमानों और पनडुब्बियों को शामिल करने की कल्पना की गई है. यहाँ पर विशेष संदेश प्रसारित किया जा रहा है. एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. जीत जाएंगे हम आप अगर संग हैं, जीत जाएंगे हम आप अगर संग हैं. देवियों और सज्जनों, जोरदार दमदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का.
The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is being invited to give his speech on the occasion of Navy Day. The people have welcomed him with a thunderous applause as the Honorable Prime Minister makes his way to the stage to present his address. It's a beautiful setting here. We can see INS Vikramaditya in the background. The sun is setting and the Honorable Prime Minister will address the gathering now. छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश जी, मुख्यमंत्री एकनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राजनाथ सिंह जी, नारायण राणे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, नौसेना के सभी साथी और सभी मेरे परिवारजन, आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है। सिंधु दुर्ग का ऐतिहासिक किला, मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा, चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप, राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आज सिंधुदुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधुदुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है
कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। साथियों, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है। ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है। कल आपने देश के 4 राज्यों में इसी ताकत की झलक देखी। देश ने देखा जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है। देश है तो हम है, देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यही भावना आज हर नागरिक के मन में है। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है। साथियों, भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ हार और निराशा का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है। भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है। भारत का इतिहास कला और सृजन कौशल का इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तब उस जमाने में समंदर को चीरकर हमने सिंधु दुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए।
भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य हजारों साल पुराना है। गुजरात के लोथल में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है। एक समय में सूरत के बंदरगाह पर 80 से ज्यादा देशों के जहाज लंगर डालकर रहा करते थे। चोल साम्राज्य ने भारत के इसी सामर्थ्य के बलबूते दक्षिण पूर्व एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया और इसलिए जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया तो सबसे पहले हमारी इस शक्ति को निशाना बनाया गया। जो भारत नाव और जहाज बनाने के मशहूर था, उसकी ये कला, ये कौशल, सब कुछ ठप कर दे दिया गया। और अब जब हमने समंदर पर अपना नियंत्रण खोया, हमने अपनी सामरिक आर्थिक ताकत भी खो दी। इसलिए आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर चल रहा है तो हमें अपने इस खोए हुए गौरव को फिर से पाकर के ही रहना है। इसलिए ही आज हमारी सरकार भी इससे जुड़े हर क्षेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आज भारत ब्लू इकोनॉमी को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रहा है। आज भारत सागर माला के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जुटा है। आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 9 वर्षों में भारत में सी फेरर्स की संख्या में 140% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मेरे साथियों, ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है और अब बहुत तेजी से 3रे नंबर के आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वो अब फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह, हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत
दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है। पहले की सरकारें हमारे सीमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गांवों को, इलाकों को अंतिम गांव मानती थी। हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उल्लेख भी किया। इस सोच के कारण हमारे तटीय क्षेत्र भी विकास से वंचित रहे। यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा। आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया है। इस वजह से 2014 के बाद से भारत में मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है। भारत से मछली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज्यादा बढ़ा है। अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है। साथियों, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जीपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है। यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है। इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र की अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। साथियों, विरासत भी और विकास भी, यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है। इसलिए आज यहां इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। कोंकण सहित पूरे महाराष्ट्र में इन धरोहरों के संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे देश से लोग अपनी इस गौरवशाली विरासत को देखने आए। इससे इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, यहां से हमें अब विकसित भारत की यात्रा और तेज करनी है। ऐसा विकसित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित,
समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। और साथियों, आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग भाग हिस्सों में हो और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। और मुझे थोड़े समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछले सप्ताह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस हलचल के कारण। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सिंधु दुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था, जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं उसकी मूल धारा छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है। इसका गर्व आज देशवासी करेंगे और इसलिए मैं नेवी के मेरे साथियों को, हमारे रक्षा मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इस प्रकार के स्थान को चुना है। मैं जानता हूं ये सारी व्यवस्थाएं करना कठिन है, लेकिन इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। बहुत बड़ी तादाद में जन सामान्य भी इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत मेहमान यहां आज मौजूद हैं। उनके लिए भी बहुत सी बातें नई होगी कि नेवी का कंसेप्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी शताब्दियों पहले शुरू किया था। मैं पक्का मानता हूं जैसे आज G20 में दुनिया का ध्यान इस बात पर गया कि भारत सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना ही नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। और इसलिए आज का ये अवसर विश्व पटल पर भी एक नई सोच के लिए निर्माण का कारण बनने वाला है। मैं फिर एक बार आज नेवी डे पे देश के सभी जवानों को, उनके परिवारजनों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नौसेना दिवस, इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो है उद्बोधन दिया। मोदी जी अपनी बातों से पास दिला के गए हैं किस तरह के आयोजन न सिर्फ एक बार किसी एक स्थान पर होंगे बल्कि पूरे देश में होंगे, जिससे कि पूरे देश की जनता भी ऐसे आयोजनों से जुड़ सके, अपनी देश की संस्कृति, इसके इतिहास को समझ सके। Yes, the Honorable Prime Minister spoke about the steps and the measures that are being taken by the government to promote fisheries and to promote various aspects that are related to land and water both. He also highlighted the importance of Chhatrapati Shivaji Maharaj's role in the past, who paved the way for a modern day navy in India. And once again, the audience here that was gathered to listen to the Honorable Prime Minister, giving him a big round of applause. The sun here will set in a few moments from now, but now it's time for the Navy to start the op demo, or what are called as operational demo. And in a few moments from now, we will see helicopters, fighter aircrafts and the fighter ships as well, warships, that will play a role in this operational demonstration that will start in a few moments from now. जी हाँ,
यहाँ पर जो है ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन किया जाएगा, जो दिखलाया जाएगा कि कैसे युद्ध में नौसेना कार्य करती है, किन विकट परिस्थितियों में और किस सुरक्षा को अपने साथ में लिए हुए, उस भाव को साथ में लिए हुए अपने आप को झोंकती है कुछ ऐसी बातों में, कुछ ऐसे दुश्मनों के बीच जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन देश प्रेम की भावना और देश की सुरक्षा का भाव ही है जो नौसैनिकों को हौसला देता है, और उसी हौसले से पूरे देशवासी सुकून की नींद ले पाते हैं, अपने सपने पूरे कर पाते हैं। युद्ध और उससे कम स्थितियों के साथ साथ शांति और विभिन्न संघर्षों में जो है भारतीय नौसेना के अभियानों का जो है संक्षिप्त एक छोटा सा प्रदर्शन यहाँ पर किया जाने वाला है। अब हम भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा प्रस्तुत शानदार ऑपरेशनल प्रदर्शन देखने जा रहे हैं और हम आपको देखे हुए प्रदर्शन को बताने जा रहे हैं। Yes, indeed. And as we speak, we can see two ISVs. They are high-speed vehicles which can play a multi-purpose role to rescue people, and also they can be an integral part of the defense. They are 25 meters long and they can go at 74 kilometers per hour, and they are going very, very fast. It's almost like a racer car going on road. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ये नजर आ रहा है और पूरा माहौल जो है वो हमें ये दिखला रहा है, ये बतला रहा है कि हम जो कुछ भी यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। समुद्र की लहरें और ये चमकते हुए आसमान में सितारे, देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री पर फॉल, कॉम्बैट फ्री फॉल जो युद्ध के समय में एक ऐसी जगहों पर स्पेशल फोर्सेस के जवान जो होते हैं वो ऐसे समय में इस्तेमाल करते हैं जहां पर भूमि के द्वारा आप नहीं जा सकते और समुद्र के बीच में पहुंचना होता है। Yes, we can see the ISVs passing by us. ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर in ISVs, and it is the optical day and night surveillance system. And apart from 24/7 patrolling in the harbor, the ISVs are also being deployed to provide force protection to all high-value assets of the Western Naval Command. And as the ISVs go, we can also see Marine commandos who have jumped from 8,000 feet high from a helicopter, and in a few moments from now they'll be landing here. Well, they take off like this when the enemy area is inaccessible and the commandos have to land in a particular area. That is when they are airdropped from the air from about 8,000 feet, and they can land at a very specific place. कॉम्बैट फ्री फॉल, जी हाँ, ये फ्री फॉल शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर्स के द्वारा 6 मरीन जो कमांडोज हैं वो मार्कोस जो हैं यहाँ पर ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, जो कि 8,000 फीट की ऊंचाई से इस मंच की ओर एक विशेष पैराशूट के माध्यम से उतरने वाले हैं। और ये जो कमांडोज हैं ये अपनी बहादुरी से, अपनी जांबाजी से इस बात का यकीन यहाँ के हर दर्शक को दिलाएंगे कि वो आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ, जानदार तरीके से जो हैं तैनात हैं, और आपको ये विश्वास इसी मंच पर दिलाएंगे। और हम देख रहे हैं और इस मंच पर बस उनका सभी लोग आकाश की ओर नजरें जो हैं वो गड़ाए हुए हैं और देख रहे हैं, और बिल्कुल सभी आकाश में नजरें गड़ाए हुए हैं और कमांडोज जो हैं वो नीचे पैराशूट के माध्यम से उतर रहे हैं। Yes, they are known as Marcos or the Marine Commando Force, and they are among the toughest, most highly trained and professional special forces in the world. They are the lethal instruments of stealth and precision that strike deep into any territory behind enemy lines. And as we speak, we can see 6-7 commandos who are making their way to the stage. Well, imagine they've jumped off from a helicopter 8,000 feet high, and yet they're going to land on the stage, which is about 15 meters in front of us. So that is the precision landing that these commandos can achieve. जी हाँ, बिल्कुल निश्चित जगह पर निश्चित समय पर उतरना, यही इन कमांडोज की विशेषता है। 8,000 फीट की ऊंचाई से देखिए ये कूद रहे हैं, यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं पैराशूट के माध्यम से। लेकिन हमारे सामने जो मंच बना हुआ है, जहाँ प्रधानमंत्री
जी, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो भी बैठे हैं, अधिकारीगण बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, वो सभी इंतजार कर रहे हैं और देखिएगा कि वो इसी मंच पर जो है लैंड करेंगे, उतरेंगे। Yes, indeed. And this combat free fall is carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and ALH, as well as fixed wing aircrafts like C-130 and AN-32 and the Dornier. So it's not just one helicopter or one aeroplane, but there are multiple aircrafts and helicopters from which they can take off and land on the days. जी हाँ, यहाँ पर जो ये कॉम्बैट फ्री फॉल है ये Mi-17, सी किंग और ALH जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ C-130, AN-32 और डोनियर जैसे फिक्स्ड विंग विमानों से भी इसे अंजाम दिया जा सकता है। इस साहसी पद्धति का उपयोग भारी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में, जो कि दुश्मनों के क्षेत्र हैं, उनके खिलाफ किया जाता है। जहां भूमि पर जो है प्रवेश करना असंभव होता है, वहां पर घुसना बिल्कुल ही असंभव सा हो जाता है, या फिर समुद्र में जहां पर जाना भी मुश्किल होता है। हमारे बहादुर समुद्री कमांडोज प्रतिद्वंद्वियों के समुद्री तत्वों को बेअसर करने के लिए हवा से गिराने योग्य इन्फ्लेटेबल नावों के साथ जो है वो कूदते हैं और उसी जगह पर कूदते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना होता है। Yes, and the team is led by Commander Saroj Srinivasan, and the Marcos, that's the Marine Commando Force, is led by Captain Anuj Sharma. जी हाँ, ALH जो कमांडर हैं वो हैं सनोज श्रीवास्तव और मार्कोस के जो ये कैप्टन हैं अनुज शर्मा। बस बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है नेवी का जो है झंडा, और ये पहले कमांडो जो है बड़ी ही तेजी के साथ अपने पैराशूट को संयमित करते हुए ये पूरे इस मंच पर जो हमारे सामने है वहां उतरे। उनके तुरंत पीछे में एक और है जो देश का झंडा है वो लेकर उतरे हैं, तिरंगा, और ये तालियां यहाँ पर बजा रहे हैं क्योंकि अभी तक ये आसमान में थे। दो कमांडोज जो हैं यहाँ पर उतर चुके हैं। और Yes, and we can see the two commandos who landed on the dais with terrific precision, even though there is such a strong breeze that is blowing here at the Tarkarli beach in the Sindhudur district, where the Navy Day celebrations are in progress here. In our midst, we have the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, along with the Defence Minister Shri Rajnath Singh, and several other dignitaries, including other Union Ministers, and the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde. And with terrific precision, we saw the two commandos land on the dais, and they'll be presenting a memento. सचिन जी ऊपर देखिए, बिल्कुल अब जो है तेजी के साथ जो है तीन कमांडोज और यहाँ पर उतर रहे हैं, बिल्कुल। और पहले कमांडो जो हैं विशिष्ट अतिथि की ओर सामने बढ़ते हुए, और उनके लिए उत्साहवर्धन किया जा रहा है तालियों के साथ में। Yes, there's a memento that's going to be presented to the Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, and a memento to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. As we said, they jumped off from a helicopter 8,000 feet above the ground, and yet they managed to make a precision landing on the dais, carrying the tricolor as well as the insignia of the Navy. जी हाँ, चिन्ह जो है नेवी का वो यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके साथ साथ जो तिरंगा है हमारा वो भी इन कमांडोज के साथ में है। जो है मरीन कमांडो जो है ये फोर्स या मार्कोस दुनिया में सबसे कठिन, उच्च प्रशिक्षित और पेशेवर विशेष बलों में से एक माने जाते हैं सचिन जी। और ये जो है चुपके से सटीकता के साथ घातक उपकरण है जो दुश्मन की सीमा के पीछे दुश्मनों के इलाके में गहराई तक हमला करते हैं। देखिए अभी एक और तुरंत जो है हमारे सामने से ये इन्होंने लैंड किया और दूसरे भी जो है वो सामने में, बिल्कुल, और इनका अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ पर। Yes, it's amazing, from such a height and with so much breeze blowing, yet they managed to jump off. Oh, what was that? That was a terrific As we will shortly see the presentation latest induction of that the happened Indian Navy, in the sea, the where there was a blast of MH-60R, sorts, who will and we showcase can see the its tricolor now self-defense in the sea. capability. The MH-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped. And if we look at the horizon, as we see, the sun is about to set in a few moments from now, but I can see a helicopter coming from far away. As we can see, the MH-60R approaching the dais. The MH-60R is approaching the dais. That's MH-60 Romeo.
And there it's sending out flares. It's a beautiful sight. We can see the sun setting in the background. We can see INS Vikramaditya in the background. जी हाँ, और ये जो है वो पूरे के पूरे जलते हुए जैसे कि पटाखे ऊपर जलते हैं उस तरह से, लेकिन ये हैं ऐसे घातक हथियार जो दुश्मन को हरा कर छोड़ते हैं, उन्हें हरा कर छोड़ते हैं, उन्हें ये जता कर छोड़ते हैं कि हमारे देश की ओर अगर तुमने नजर उठाई तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। और ऐसा लग रहा था कि दिवाली आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। The flares that came out from that helicopter there. To either destroy or disable And now them. we can A see key aspect two to more progress helicopters further approaching operation. from our left. This insertion is done in many And, ways. This Our is next the slithering demonstration operation. provides a glimpse into the airborne insertion of Marine commandos. And we are going to see Marine commandos who are going to send their commandos on a boat in the middle of the sea. There is एक रस्सी के माध्यम one से helicopter ये which is कुछ ही giving पलों cover में to the हेलीकॉप्टर other से helicopter. किसी जहाज It can या be used इमारत as a पर उतर rescue सकते हैं। operation. आसान It can सी be दिखने used वाली यह enemy प्रक्रिया territory. इनके It कठिन can be used परिश्रम anywhere. और सटीक We can see a प्रशिक्षण small boat there in the sea, and there is a helicopter वो उसकी hovering over it. सुरक्षा कर रहा है। बिल्कुल, एक जो है 50 फीट के ऊपर पर है और दूसरा हेलीकॉप्टर उसको पूरी तरह से बचाते हुए उसको राउंड जो है उसका लगा रहा है, और वहां पर स्लिदरिंग जो है स्लिप होकर जो है कमांडो नीचे उतर रहा है। Yes, it's called slithering operation, जी where a commander can quickly get down onto a boat 50 feet above the ground, or above sea in this case. Commando Yuvraj is heading this operation. And we can see two helicopters side by side. One of them is giving cover to the other. One helicopter is involved in the main operation of rescuing the people in the boat. And we can hear the thunderous sound of the helicopters here. They're probably about 150 meters away from us. और उसके जो नीचे है वो होता है एक छोटा सा इन्फ्लेटेबल जो है वो है जेमिनी, जिसमें वो उतरते हैं। और ये जो दूसरा जो मैं विमान बता रहा था, दोनों ने अपनी जो है कार्रवाई यहाँ पर समुद्र के ऊपर जो है तट पर पूरी कर ली है और ये अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए। And as we speak, we can see the Geminis. There are 3 helicopters coming from our left, and right now they are in front of us. Now there are 3 boats there sending out a signal, a distress signal, and all the 3 helicopters are in front of us. There are 3 boats there, and now this kind of operation takes place in darkness in enemy territory. जी हाँ, इसी कारण ये जो धुआं सा दिख रहा है, गुलाबी सा धुआं, पीला सा धुआं, ये अंधेरे में चमकता है, जिससे ये समझ में आता है कि जो है हमारे जो सैनिक हैं लाइट सपोर्ट उन्हें कैसे छुड़ाया जा सके। या गोलियों की धड़धड़ाहट जो है बिल्कुल माहौल बना रही है घबराहट का, लेकिन घबराने की देशवासियों को जरूरत नहीं, Yes, on the दुश्मनों को है। On the right side, we can see what looks like a movie scene. In fact, it's better than a movie scene. The way the commandos are approaching towards the target, and they are trying to rescue somebody, they are trying to save somebody, and also trying to make a quick exit. भारतीय बचाव की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कार्रवाई दिखाई के जा साथ रही है। में और हमारे सामने जो है 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें से जो मंच के है सामने इस समय रस्सी से आपको नीचे आते हुए और हेलीकॉप्टर नीचे दिख से रहे ऊपर जाते हैं। हुए वो एलेट ये हैं जो जो दृश्य सर्च एंड है रेस्क्यू का रोमांचित प्रदर्शन कर करने रहे वाला है। Yes, indeed. और परिस्थितियों जैसे को मैं कह रहा था, ध्यान में हमने रखते फिल्मों में हुए बहुत देखा, ये लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक है। बिल्कुल रोमांचकारी है, बिल्कुल हमारे हृदय को छूता है और ये दिखलाता है कि कितनी जांबाजी है हमारे सैनिकों में, हमारे वीरों में। Yes, they are giving a demonstration सुरक्षित of स्थान पर ले saving a जाने के soldier, लिए saving a people in enemy पोस्ट पर पहुंच चुकी territory, है। and rescuing them. And it's a quick, swift operation which lasts गोलियों के barely बौछार minutes, के बीच while a helicopter waits करने for वाले them to इन rescue मरीन them. कमांडोज के लिए एक बार And the Marine जोरदार तालियां। commandos, they come in, quickly do their job, and make a quick exit. We can see the 3 helicopters, they've done their Ladies job. and gentlemen, They've the rescued ship the one in they front wanted to rescue, and they've taken the person whom they've rescued on the helicopter, and off they go. And as we speak, we can see INS Vinash in front of us, which is not too far.
Their actions are what INS we commemorate विनाश as Navy Day वो each अपने year. नाम को साबित करता है, now दुश्मनों witness का surface-to-surface विनाश कर कर missile छोड़ता or है। SSM और यही वजह है कि ये launch 3 हेलीकॉप्टर जो demonstration by हैं INS अब विनाश. पूरी The गति के missile साथ, तेज launch गति is के साथ simulated by अपने firing गंतव्य की flares ओर जा from रहे the हैं, missile जहां vessel. ये Surface-to-surface अपने missiles are the अगले पड़ाव से ये साबित करेंगे कि इस देश की सुरक्षा के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और यहाँ हम सामने देख रहे हैं कि जो बड़ा सा जहाज है वो हमारे सामने है। INS Vinash, which sent out some flares. Aditya Tomar is the commander of this INS Vinash, and it is a surface-to-surface missile launcher, which speaks for itself. From where we are, it doesn't look very huge, but I've been told it's quite big as you get closer there. And it has मिसाइल दागने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निश्चित रूप से जैसा कि आप कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका काम बड़ा घातक और बड़ा है। Yes, and it was used in the 1971 war when missiles were launched on Karachi to tilt the war in favor of India back then. And we saw lots of ships there, warships on the horizon, and they were stable there yesterday. But today we can see that all the ships are moving and approaching closer to the show for the audience and for the dignitaries to take a good look at these warships. जी हाँ, चेतक विमान जो है वो चेतक को कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। हम सामने देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो है जहाज के ऊपर है और जो रसद जो दी जाती है, अन्य आवश्यक सामग्रियां जो दी जाती हैं, वो देते हुए यहाँ पर दिखलाई हमें दे रहा है। एक हेलीकॉप्टर है जो इस जहाज के नजदीक में है और पूरी अपना काम करने के बाद वो वहां से फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा। We have seen INS Vikramaditya that can launch aircrafts, but these other ships, well, they can launch helicopters from there, most of them. And as we said, INS Vinash, it can launch surface-to-surface missiles. And meanwhile, we can see some more helicopters coming from our left. और अब हम अपने बाईं ओर देख रहे हैं कि 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं हमारे मंच के सामने आते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में, और तमाम अधिकारीगण, माननीय अतिथिगण यहाँ पर हैं। The recently inducted MH-60R, which we can see right in front of us, well, it carries a sonar which is used to detect the enemy lying silent underwater in a submarine. In addition, the helicopter also carries sonar buoys, which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes lethal anti-ship missiles, torpedoes, and depth charges. The MH-60R has almost all the capabilities of a warship and is known as the Seahawk. This helicopter has a crew of 2 pilots and 1 air operations officer. MHBOR में एक सोनार शामिल किया गया है जिसका उपयोग पानी के अंदर पड़े दुश्मन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर जो है सोनोबूथ भी चलाता है जिसका उपयोग पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, ध्वनि संचालन के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर के आयुध में घातक एंटी शिप मिसाइलें हैं, टॉर्पीडो हैं, गहराई से जांच करने वाले हथियार शामिल हैं। साथ ही MH-60R में युद्धपोत की लगभग सभी क्षमताएं हैं और इसे सी हॉक के नाम से जाना जाता है। और इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 वायु संचालन अधिकारी का दल है। Yes, we are seeing the demonstration of the sonar dunking operation where the helicopter has descended to hover over a likely submarine position. They are not very sure if the submarine is there, but they will find that out. And by lowering the sonar in the water to the expected depth of the submarine and operate it, now that process is known as dunking. And we can see that the 2 helicopters there, they have lowered a sonar to detect a submarine if there is one under the water. 40 फायर बकेट संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से बना है यहाँ पर ये विमान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, SKG, जिसके कमांडर हैं दीपक दीवान और ये इसको कमान कर रहे हैं। And we can see another warship passing by us, not too far from where we are, as the sun has set here at the Tarkarli beach in Sindhudurg, Maharashtra, where we are coming to you live, where the
Navy Day celebrations are in progress. There's so much happening here, Sham. कहीं बोट दिख रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, और कुछ ही दिन पर हमारे सामने कहते हैं ना कि 70 mm का जो पर्दा होता है, उस तरह से हमें बाईं ओर से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखलाई दे रहा है। सामने हमारे 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़े से जहाज पर, जिसका हमने जिक्र किया है, वहाँ पर जो है अपनी रसद पहुँचाने के उद्देश्य से पहुँचा हुआ है एक हेलीकॉप्टर जो कि बिल्कुल नजदीक है जहाज के, और ये अपने ऑपरेशन को पूरा अंजाम देते हुए। और यहाँ पर दर्शक जो हैं, कामो 31 हमें आता हुआ दिखलाई दे रहा है, बिल्कुल। On completion yes, of we its can see at a distance the helicopter returning to the mothership. Captain Sudhir Kumar Singh is the commanding officer of the ship, and we can see a helicopter landing on a moving ship. So that obviously requires a lot of precision for a helicopter to land on a ship. So this is a multi-purpose ship. It can also launch a missile, as well as it can also launch helicopters there. The helicopter is called Kamo 31, and we can see it landing on the ship here. And it's probably about 100-150 meters from where we are, from where the commentary booth is, as the audience here is excitedly watching all the proceedings that are happening here at the Tarkarni विक्रमादित्य beach. पर जो है कामो लैंडिंग करते हुए दिखलाई दे रहा है। by Lieutenant Abhideep Lamba are approaching their target, which is a simulated offshore. And this is the most interesting part of the evening. I'll try my best to describe it to you. Well, there are commandos there who are approaching an enemy target, and they are going to neutralize it. So we can see commandos coming in a rush in a small boat, and there is a pontoon which has been it's a mock oil rig, and the commandos are going to approach that oil rig. They are going to put a charge on it and demolish it. So we can see that there are 2 teams of commandos approaching from different directions, approaching towards the oil rig, and they are going to plant a charge on it and make a quick exit so that they can demolish it. इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर जी हाँ, ये जो अब अगला यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जाने वाला है, ये बड़ा ही साहसी कदम है। ऑयल रिग जो है यहाँ पर एक बनाया गया है, और जो यहाँ पर नौसैनिक हैं उन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि वो नीचे से जाकर बड़ी ही सहजता के साथ और चपलता के साथ में ऐसा कुछ करें कि इस बाधा को वहां से हटा दें। और एक ऐसा सेट किया गया है वहां पर, और हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये ऑयल रिग वहां तैरता नजर आ रहा है और वहां उनके नजदीक में कोई भी नहीं है, लेकिन उसको टारगेट करते हुए अब यहां पर एक हेलीकॉप्टर आएगा, और वो हेलीकॉप्टर अपने मार्कोस को यहां पर Yes, and we can see बारूद लग चुका है वहां पर नीचे, और वो कैसे सुरक्षित स्थान जाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार है कि वो उन्हें वहां से ले जाए, और वो उन्होंने नौकाओं के द्वारा वहां पर जो है ब्लास्ट करने के लिए तैयार रखा है। बारूद पूरी तरह से ऑयल रिग के नीचे उन्होंने ये किया है। Yes, they clandestinely got to that rig and planted some explosive, and in a few moments from now we are going to see that explosion of the mock oil rig, and the commandos there, they have put a charge on that, and they just make sure that they are far away from where the explosion is going to happen. So they quickly make an exit, and it's all done with terrific precision as they make a getaway after planting the charge at the oil rig. And in a few moments from now, I'll try my best to describe that explosion. We can see that the commandos in a small little boat, they have made their getaway, and जी हाँ, वो दूर होते जा रहे हैं। अब हम आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि कब कुछ ऐसा होता है जो खतरनाक होगा, जो दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक होगा। Yes, and they have planted the charge. Now everybody's waiting with bated breath, and there, I don't know if you could hear that, but I'm sure quite a few hearts skipped a beat when that oil rig was... बादल छा गए हैं आसमान में।
जित्वा भोक्ष से महीम. So we can see black smoke up in the sky as that oil rig has been demolished with terrific precision by the commandos. जी हाँ, यहाँ पर जो ये यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है वो इस बात को दर्शाता है कि कितने खतरनाक हैं हमारे जो वीर सेनानी हैं. और ये देखिए, इन्होंने बड़े ही सहजता के साथ में अपनी नावों के द्वारा ये आए और वहाँ ऑयल रिग था, उसके नीचे में इन्होंने जो है बारूद लगाया और अब जो है उस अंजाम को देने के बाद प्रदर्शन को 2 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं. Yes, indeed. Now to rescue the commandos who were there in a small little boat there are 2 helicopters that have come out of nowhere to rescue them and take them to safety. Now that the job is done, now that they have demolished the target behind enemy Seeking lines, 42 Charlie को. the Seeking 42 Charlies, they are making their way. They are in fact right in front of us. One of them is rescuing the commandos. The other helicopter is giving it cover just in case there is an enemy attack. So it's all very wonderful to witness as the light is fading here gradually at the Tarkarli beach where Navy Day celebrations are happening, and we are coming to you live from this very beach as we can see the commandos getting up on the helicopter. The precision with which they execute is absolutely amazing. बिल्कुल, यहाँ पर एक दूसरे को कवर देते हुए जो जवान हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं. और यहाँ पर जो ऑपरेशन जो हुआ है उसके बाद में सुरक्षा करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए जो है यहाँ पर एक रस्सी लटकाई गई है हेलीकॉप्टर से और बड़े ही नजदीक में नाव के पास में है ये, और बचाव करने की मुद्रा में. और वहाँ से मार्कोस और कमांडोज नीचे आते हैं और नीचे के जो जिनका बचाव करना है उन्हें ऊपर ले लिया जाता है. बहुत नजदीक तक समुद्र के एकदम सतह पर आते हुए ये हेलीकॉप्टर हमें नजर, और एक हेलीकॉप्टर उसकी रखवाली करता हुआ जिससे कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो पाए. कर दिया जाएगा तत्पश्चात. Yes, and we can see the commandos, there are about 12 of them there in one small little boat there who have finished the job, and now there's a helicopter out there that has come to rescue them. They are just making sure that all their equipment is in place, and this is also going to be a fantastic sight because we can see the Marine commandos who are in a pair. There are 2 of them together hugging each other as the helicopter rises above the ground, and we can see 12 of them hanging in midair as the helicopter takes them away to safety, and we can also see them sending out flares to indicate where they are. जी हाँ, बचाव की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली गई है. हमारी नजरों के सामने हम देख पा रहे हैं कि 3 कमांडोज जो हैं यहाँ पर रंग बिखेरते हुए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर उन्हें बड़ी तेजी के साथ ले जा रहा है. बचाव कार्य पूरा हो चुका है और ये कमांडोज इस बात को साबित कर चुके हैं कि उनके सामने अगर कोई भी आएगा तो निश्चित मानिए वो हार कर जाएगा. Yes, indeed. And now we saw lots of helicopters. Now it's time to see some aircrafts. We can see a couple of them approaching from the left of the beach, and although it looks like they are very far away, I'm sure it's just a matter of seconds before we see them right here in front of us. For all those who've just tuned into this broadcast, we are coming to you live from the Tarkarli beach where the Navy Day celebrations are in progress right now. जी हाँ, नौसेना उड्डयन हमारे संचालन का एक जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे नौसेना संचालन का, जो बेड़े को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है. आज आपने देखा है कि एयर आर्म की ताकत की एक झलक भी अब आपको दिखलाई जाने वाली है. एयर आर्म किस तरह से काम करता है, यहाँ पर आपने देखा कि समुद्री जो कमांडोज हैं, मार्कोस हैं, उन्होंने किस तरह से जो है यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाया, अपना जलवा दिखाया, अपनी वो बातें दिखाई जो शायद हम नहीं जानते थे. यहाँ हम देख पा रहे हैं और आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल कितना जोश और उत्साह से भरा हुआ है. Yes, we can see the Chetak helicopters there. They are leading the fly past. Chetak is a single-engine light utility helicopter and manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited, HAL, in Bangalore, and they are utilized in the Indian Navy for search and rescue, coastal patrolling, and to transport passenger or equipment.
जी हाँ, चेतक जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर हम देख रहे हैं। फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाले जो हैं ये एंजल्स चेतक हेलीकॉप्टर हैं। चेतक फ्रांस द्वारा विकसित और भारत में बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एकल इंजन लड़ाकू उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। चेतक का उपयोग भारतीय नौसेना में खोज और बचाव, तटीय गश्त, यात्री या उपकरण परिवहन के लिए किया जाता है। ये विमान भारतीय नौसेना के लगभग सभी हवाई अड्डों पर स्थित है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलते हैं और 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। एंजल के इसके लीडर हैं श्रीजीत गोपाल। Yes, and now we can see the ALH, which is followed by the Chetaks. मंच ALH के stands सामने for से- Advanced Light Helicopter, and they are also designed and manufactured by Hindustan Aeronautics Limited. And we can see 4 of those ALHs going past us. And now that the sun has देवी और सज्जनों, क्रम में there's beautiful light there in the background. We can see hues of orange and yellow and grey, as we can see the helicopters that are beautifully lit up going across right in front of us. जी हाँ, बिल्कुल। और इस तट पर जो चेतक हेलीकॉप्टर 4 जो हैं वो एक फॉर्मेशन में हमारे सामने से गुजरे हैं। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो है जी LH, जी हाँ, बताइए। Yes, and now we can see the SKs, that is the Sea King Advanced Anti-Submarine Warfare Helicopter, and they are known as flying frigates due to their advanced sensors and firepower. Now this 3 aircraft formation was led by Commander Deepak Diwan, and now we are soon going to see the Dornier aircraft that will make its way soon. जी हाँ, अगला सी किंग जो है वो आएगा। उसके पहले यहाँ पर बता दें कि MS-60R जो है ये हमारे सामने से गुजर रहा है, जिसको कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। Yes, indeed, that's the MH-60R that we can see. We saw it earlier as well during that search and rescue operation. जी हाँ, कामो 31 की हमने बात की थी। और ये जो है सी किंग उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्धक हेलीकॉप्टर है। इन हेलीकॉप्टरों को उनके लिए उन्नत सेंसर मारक क्षमता के कारण फ्लाइंग फ्रिगेट के रूप में भी जाना जाता है। Yes, that is the KM-31, the Kamok 31, that is making its way past us here. And now, in fact, we can see the Sea King helicopters, and they are also used as anti-submarine helicopters. So there are 4 of them with their lights fully on. It's a beautiful sight here as the 4 helicopters make their way across the stage from left to right, as all the people who have gathered here to witness this celebration give them a big round of applause. फ्लाइंग फ्रिगेट जिन्हें जाना जाता है, एक ऐसा दस्ता जो दुश्मनों को कहते हैं कि उनके दांत खट्टे कर हेलीकॉप्टर हमारे शक्ति सामने से गुजर रहा है और इसकी कमान संभाले हुए हैं कमांडर दीपक दीवान। 4 हेलीकॉप्टर्स का ये दस्ता हमारे सामने से अभी गुजरा है, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाता हुआ। Yes, and now we can see the Dornier aircrafts. We spoke about them just a while ago, and we were expecting them, and here they are coming from the left. And these are medium-range maritime surveillance aircraft. Leading the formation today is Captain Siddharth Raut, and the Dorniers are the workhorses of the Indian Navy and are extensively used for tactical operations like maritime reconnaissance and patrolling missions all around the mainland as well as our island territories. जी हाँ, यहाँ पर सी किंग्स के बाद में डॉर्मियर जो है ये विमान है और ये मध्यम दूरी के समुद्री निगरानी विमान है जो आज जो है फॉर्मेशन हम देख रहे हैं 3 विमानों का यहाँ पर नजर आ रहा है और इसकी कमान संभाले हुए हैं कैप्टन सिद्धार्थ राउत। और ये जो विमान है ये मुख्य रूप से भूमि के साथ साथ हमारे द्वीप क्षेत्रों के चारों ओर समुद्री टोही और गश्ती विमान जैसे सामरिक संचालन के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। And the next aircraft that we are going to see, and again it looks like it's far away but I'm sure it'll be here in no time, is the Poseidon aircraft, also known as P-8I, which is the latest induction in the Naval Air Arm, and it has exceeded 35,000 hours of flying since it was inducted in 2013. It is a multi-dimensional lethal instrument of war equipped with torpedoes to attack enemy submarines, anti-ship missiles and long range of state-of-the-art radar to classify each contact it encounters. We can see the Poseidon now sending out flares
और फिर से एक बार लग रहा है कि दिवाली आ गई है। बिल्कुल दिवाली, और हमारे चेहरे भी रोशन हो गए। ठीक हमारे सामने से गुजरा है P-8I। ये जो है पोसीडाउन विमान है जो हाल ही में नौसेना विमान में शामिल हुआ है। इस बहुउद्देशीय विमान ने बेड़े की छठी इंद्री बनकर अपनी क्षमता हासिल की है। तेजस का नेवी रूप जो है वो अब यहाँ पर सामने हमारे आने वाला है, उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। Yes, it's LCA. It's small, it's light, but it's very, very powerful. And that is, we have Captain Amit Karade on it, the LCA. And it can go as fast as 2,200 kilometers an hour. जी हाँ, कैप्टन अमित कावड़े जो हैं एलसीए का नेतृत्व कर रहे हैं, कमान संभाले हुए हैं। एकदम तेजी के साथ हमारे सामने से गुजरता हुआ इसको हम देख पाए, इसके पहले ही हमारे सामने से चले जाएगा, बिल्कुल रंगीन या बिखेरते हुए यहाँ पर रोशनी बिखेरता हुआ एलसीए नेवी। What a beautiful sight that was. That was the LCA, which just went across, shooting out some flares, making it very, very colorful, because the sky behind is perfect for this occasion. We can see hues of orange, yellow and gray. And now we're going to see the Hawk, which is going to come at 0.7 Mach. Mach is the speed at which sound travels. तो जितनी जल्दी आवाज जाती है तो पहले आपको विमान जाते दिखेगा, उसकी आवाज थोड़ी देर बाद आएगी। आवाज खत्म होने के पहले ही विमान हमारे सामने से गुजरते हुए, और ये आंखों से लगभग ओझल होते हुए 4 विमानों का ये दल हमारे सामने से गुजरा है। हॉक्स हैं ये। वो काफी दूर चले गए, उसके बाद उसकी आवाज आई, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग एट 0.7 मैक स्पीड। पहले वो ट्रैवल हमारे सामने से कर लेते। क्या बात है सचिन जी, आप यहाँ पर बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, और क्यों ना नजर आए, क्योंकि ये पूरा माहौल जो है उत्साह से, जोश से भरा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो उत्साहित नहीं है ये दृश्य देख के। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी है यहाँ। वी ऑल्सो हैव अदर डिग्निटरीज इंक्लूडिंग the Minister for Defense, Shri Rajnath Singh, the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, among several other dignitaries here who are witnessing some fantastic demonstrations by the Navy. And there we can see the MiG-29 Panthers in front. Panthers, और ये फिर से आपने कहा दिवाली मन रही है हमारी। Yes, in fact, they came from the opposite direction this time, where the ships are. एक बार जोरदार You can hear the sound long after the aircrafts have passed us, which goes to show how fast they are traveling. And we can still see them, rather we can still hear them, we can't see them because they have gone so fast. And one more MiG-29 Panther is coming from the opposite direction, from the horizon. And as we've been saying, that they come and go so fast with the blink of an eye, the speed at which they travel. And this Panther, as we can see, I can see the green light, I can see the red light, and he's going to make a formation of 8, which we saw yesterday. And, well, even the Honorable Prime Minister is highly impressed by what he's seeing here. And there we can see the MiG-29. Once again, the sound comes long after the aircraft has passed. बिल्कुल, और वो साउंड भी ऐसा, आवाज भी है ऐसी जो अपनी गरज से दुश्मनों को थरथराने पर मजबूर कर दे। पैंथर्स 29 जो है, MiG-29, ये हमारे सामने इस समय अंग्रेजी का विकास नहरवाल इसके कमान संभाले Yes, हुए। and once again, it is approaching towards us. We can't hear anything. We can see it coming. But as soon as it approaches us, you can hear the thunder. You can hear the sound of that aircraft. And there you go. We can see 2 huge flares coming out of that aircraft. And the sound of that is just deafening. बिल्कुल आपने सही बात बताई है यहाँ पर कि ये प्लेन जो है यहाँ पर यही प्रदर्शन कर रहा है कि वो हमारी ओर आता तो दिखाई देता है, किसी तरह की आवाज नहीं आती, लेकिन जब वो आकर गुजर जाता है तब एकदम थंडर की तरह आवाज आती है, पैंथर की तरह आवाज आती है। बिल्कुल, और अब हम देखेंगे, it's giving out flares there, and it's going higher and higher and higher, but it has already sent out some flares which we can still see. And now gradually the MiG-29 is disappearing out of sight, but we can still hear the sound of that. And that's Captain Vikas Nashwal. Well, they talk about an adrenaline rush. Well, we are getting an adrenaline rush just by looking at what's happening here at the Navy Day celebrations.
जी हाँ, और इस तरह से रोशनी फैलाते हुए जो ये विमान था मिग 29 पैंथर्स, ये आकाश की बुलंदियों को छूते हुए नजरों से ओझल हो गया। और यहाँ पर अब पूरे जो हैं सभी जितने दर्शक हैं वो तालियां बजाकर इन तमाम कमांडोज का और कमान संभालने वाले कमांडोज का और हेलीकॉप्टर्स का और विमानों का यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ उससे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और ये देखिए साउंड आ रहा है कुछ अलग सा। Yes, and that was quite an adrenaline rush as we saw the aircraft, the helicopters here on site, and उसको चलाने में कितना मजा आता होगा शाम जी। क्या बात है, आपने एकदम ऐसा कहा कि जो मैं खुद सोच रहा था, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, अभी तो हम ये बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि अगला कार्यक्रम यहाँ क्या है। Next, we can see the Naval Central Band on display here, and they are here to give us a scintillating performance. And then this is one of Navy's pioneer bands. It was formed in the early 40s as a 26-piece marching band. Now today, it is a breathtaking 45-piece symphonic orchestra that plays martial music and can just as skillfully play overtures, symphonies, solos, duets, and many other forms of contemporary music. ये जो यहाँ पर हम आवाज सुन पा रहे हैं, श्रोता आप सुन पा रहे हैं ये आवाज, ये नेवी की अपनी एक अलग पहचान है। जहाँ पर यहाँ पैंथर्स थे, चेतक थे, थरथराहट थी, दुश्मनों को कपाने वाली आवाजें थी, वही मन को लूटने वाला संगीत भी है जो नेवी को अपनी एक अलग पहचान देता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय नौसेना बैंड की, तो ये शानदार प्रदर्शन हमारे सामने यहाँ जारी है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना बैंड से परिचित कराने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये नौसेना के अग्रणी बैंडों में से एक है। और इसका गठन 40 के दशक की शुरुआत में 26 टुकड़ों वाले मार्चिंग बैंड के रूप में किया गया था। आज ये एक लुभावना 45 टुकड़ों वाला सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा है जो मार्शल संगीत बजाता है, साथ ही साथ ओवरचर, सिम्फनी, सोलो, डस्क और समकालीन संगीत के अन्य रूपों को भी बड़ी ही कुशलता के साथ बजा सकता है। The Indian Naval Band has regaled and enthralled audiences across the country and around the globe as well. The musicians accompany naval ships during goodwill visits to many foreign shows to play an ensemble with the bands of these foreign nations. The musicians of the Navy therefore have proven their mettle as goodwill ambassadors of the country. अपने बेहद प्रतिभाशाली संगीतकारों के साथ बैंड ने पूरे भारत और विदेशों में भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। अगले कुछ ही क्षणों में अभी जो हो रहा है उसे आप जारी होता देखेंगे और ये भारतीय नौसेना बैंड आपको लोकप्रिय संगीत और संगीत से मंत्रमुग्ध करता नजर आएगा। जो दर्शक यहाँ पर हैं निश्चित रूप से वो इन संगीत की लहरियों में खो गए हैं और बैंड के लिए जो एंटनी राज हैं वो इसका संचालन कर रहे हैं। Yes, and it's very interesting, Shyam. They are not only playing the music, they're also moving in synchronicity, in unison together, without putting a single wrong step forward. बिल्कुल कहना ना होगा जो हम ग्रुप में डांस जैसा देखते हैं वो सिर्फ बजा ही नहीं रहे हैं बल्कि डांस के मूवमेंट्स भी उसमें नजर आ रहे हैं। वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वो एक नए नए तरीके से उसे आप तक हम तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। That is the Naval Central Band which is on display at the moment, and as we speak once again they stand steady, they play for some time and then they start moving and all in synchronicity step by step. ऐसा म्यूजिक बजाना बैठ के बजाना मुश्किल है, ये तो घूमते घूमते खड़े होके मार्च करते करते इतनी बढ़िया बढ़िया धुनें बजा रहे हैं। क्या बात है, यही तो है नौसैनिकों का शौर्य भी, उनका अनुशासन भी, जो संगीत में भी नजर आता है, युद्ध में भी नजर आता है, बचाव में भी नजर आता है और संरक्षण देने में भी नजर आता है। Now, of the special distinction for the Naval Band have been the international performances during the Queen's coronation in the UK, Expo 70 in Japan, the International Music Bicentennial Celebration, the President's Fleet Review in the USA, and the International Fleet Review in Australia. The Indian Naval Band recently participated in the prestigious month-long Royal Edinburgh Military Tattoo at Scotland, UK in August. And well, they have been pretty much all over the world, including the Russian Navy Day celebration at St. Petersburg earlier this year in July.
बिल्कुल, भारतीय नौसेना बैंड की उत्पत्ति जो है ये 1945 में हुई थी, जब इसे मुट्ठी भर नौसेना संगीतकारों देवी और सज्जनों, नेवल तब से लेकर आज तक इसने एक लंबा सफर तय किया है। इसमें देश भर के कई प्रशिक्षित संगीतकार शामिल हैं और इस तरह से अनुशासन के साथ में, संगीत के साथ में, उन दोनों के सामंजस्य के साथ में ये प्रदर्शन संपन्न हो रहा है और ये मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो है कंटिन्यूटी ड्रिल की बात आती है और कंटिन्यूटी ड्रिल भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। Yes, the Naval Central Band has made its way off the stage and now we will have the continuity drill. While the emotions of the Naval Band brought out are still fresh, we are now presenting the continuity drill. Now let me describe what happens in the continuity drill. Well, there are 24 naval sailors and the group is armed with a vintage .303 rifle. .303 तो काफी famous rifle है। जी हाँ, और इस राइफल के साथ यहाँ पर जो करिश्मा दिखाया जाएगा, जो उसका एक सामंजस्य दिखाया जाएगा और व्यक्तियों के साथ और जो नौसैनिकों के साथ में उसकी एक दोस्ती दिखलाई जाएगी, वो बड़ी ही बेहद दर्शनीय होगी। आप देखते रहिए। Yes, indeed. And now these 24 naval soldiers, they are going to perform a series of drill movements with no commands being given, but yet they're going to perform them in a synchronized manner. Now usually we see, चाहे वो music हो तो कोई there's somebody who is conducting the orchestra or the choir as the case may be, but यहाँ उन्हें कोई command नहीं दे रहा है, वो अपने आप ही एक synchronous drill present करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो गार्ड हैं ये 24 नाविक होते हैं जो समूह को .303 राइफल से सुसज्जित किया जाता है और ये एक समकालीन तरीके से बिना किसी आदेश के, बिना किसी संख्या ड्रिल के जो है ये एक श्रृंखला का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि उनकी राइफलें चमक रही हैं और उस पे जो कुंदा है वो भी चमक रहा है और ये बतला रहा है कि इस चमक के पीछे इनका अपना तेज है, इनकी अपनी शक्ति है, इनका अपना अनुशासन है, इनकी अपनी प्रगतिशीलता है। और ये तालियां भी इसी बात को बता रही हैं कि बिना कुछ कहे, बिना किसी आदेश के, बड़े ही प्यारे ढंग से 40 के 40 जो यहाँ पर 24 जो हैं नाविक बड़े ही प्यारे ढंग से ड्रिल कर रहे हैं, वो है कंटिन्यूटी ड्रिल। Yes, they are moving around. They are performing a dance of sorts, you can call it, because it is so very well orchestrated and so very well synchronized. They are holding their guns which are shining, spotlessly clean, and we can see them from far away. They are probably about 100-150 meters away from us, but we can see the 24 naval sailors there performing the continuity drill in complete synchronicity. बिल्कुल, ये अनुशासन और साथ ही साथ अनुशासन के लहराते हुए नौसेना का जो है यहाँ पर झंडा और है यहाँ पर तिरंगा। यहाँ हम सामने देख पा रहे हैं, हमारे जस्ट 150 मीटर के सामने जो है यहाँ पर समुद्री तट है, पूरा एक बीच है जिसे हम कह सकते हैं दर्शनी भी, और दर्शनी के साथ साथ ही ये एक यादगार बीच बनने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर संपन्न हुआ है 4 दिसंबर का नौसेना दिवस और ये संपन्न यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। And now we can see the 24 soldiers. Well, they are pointing their guns in all directions, 360 degrees. They have formed kind of like a small group there with all of them. A group of them are in the center and they are covered by the rest of them, kind of giving them cover, and they're pointing their guns in all directions. And once again, the synchronicity of this continuity drill is absolutely impeccable. ये संयोजन ही इस ड्रिल की खासियत है। अब आमने सामने राइफलों के साथ में जो हैं ये नौसैनिक जो हैं, ये गार्ड जो हैं खड़े हुए हैं और ये हमें दिखलाने वाले हैं एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा सामंजस्य जो बिना कहे किया जा सकता है और उसे समझा भी जा सकता है। आप देख पाएंगे कि कुछ ही देर में वो दृश्य आपके सामने में होगा और यहाँ पर राइफल और राइफल के कुंदों और जो कुंदा होता है उसमें आग लगा दी गई है और ये लगी हुई आग आपस में खड़े हुए, आमने सामने खड़े हुए जो हैं और इन्होंने वो राइफलें उठा ली हैं और एक दूसरे के सामने लगा दी हैं और इस होते हुए अंधेरे के बीच में ये आग जो है, एक रोशनी जो है वो हमें नजर आ रही है। Well, it's a perfect setting ये जो here. संगीन है इसके ऊपर जी संगीन के ऊपर जो है आग लगी हुई है।
Yes, it's a perfect setting here because the sun has set. It's getting a little dark there, and we can see the flames on the top of those guns there, the rifles, as they exchange the rifles and pointing it upward, as one of the members of this drill is walking across that. So this is the continuity drill that is in progress at the moment, and the way they're turning those guns, the top part of it is lit, it's on fire, but the way they are swinging it around is quite amazing. Yeah, they're twirling the bonnet around, which is on fire, so that's quite a spectacular skill which is on display right now by the 24 naval sailors of the continuity drill. और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो 24 के 24 नौसैनिक हैं, इनके संगीनों में जो है आग लगी हुई है और उनके बीच में से जो है इनके कमांडर निकलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और ये तालियों की गड़गड़ाहट उनके सम्मान में. Yes, that was quite spectacular. Imagine the bonnet of a gun that is on fire. It is sharp and it's spinning around, and yet that gentleman, the Navy sailor, he walked fearlessly across it. Such terrific synchronization. And now the war cry from the naval sailors of the continuity drill as they make Ladies and gentlemen, a big round of applause. and everybody here is applauding the continuity drill team. And what we have next is something that we saw yesterday during the rehearsal. हॉर्नपाइप डांस जो है उनका होगा सी कैडेट कोर का, और ये जो आग संगीन पर लगी हुई थी और जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, ये आग, ये रोशनी हमारे दिलों में जलाते हुए, ये विश्वास दिलाते हुए कि नौसेना हमेशा आपके साथ है, हर अंधेरे को उजाले में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है. Yes, and now we can see the little superstars of this evening, the Sea Cadet Corps and the cadets and their wonderful hornpipe dance. The hornpipe dance is a classic among all things at the Navy Week, and it is known and remembered far and wide. And this beautiful expression of art in the form of music and dance has been an integral part of Navy Week celebrations. And we saw the rehearsal yesterday, and मैं तो एक ही कहूँगा श्याम जी कि हमने बॉलीवुड डांसेस तो बहुत देखे, लेकिन इससे बेहतर डांस तो मैंने नहीं देखा. और ये सिर्फ यही नज़र आता है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो ये सी कैडेट कोर है ये बहुत ही लोकप्रिय है, खास करके नौसैनिकों के बीच में भी और दर्शकों के बीच में भी और बच्चों के बीच में तो खास रूप से, क्योंकि ये बड़े ही सिंक्रोनाइज तरीके से, संयमित तरीके से और बड़ी ही लचक के साथ मुस्कुराते हुए और अपना जो यहाँ पर डांस जो है ऑन पाइप डांस प्रस्तुत करते हैं, ये एक आकर्षण होता है नेवी डे के कार्यक्रम का. The music has started now for the hornpipe dance, and there are a bunch of cadet corps, maybe about 40-50 odd of them, who are dancing so perfectly in such a beautiful rhythm with big smiles on their faces. And they're probably in college, maybe around 18-20-year-olds, who are doing a terrific job of performing the hornpipe dance. We can see the Sea Cadet Corps. They are wearing the traditional white hat and the blue skirts in the traditional uniform. And the joy that you can sense, the joy with which they are dancing here, because they've got big smiles on their face, and even the music, full credit to the Navy band for such a nice, lovely, peppy piece of music. जी हाँ, बैंड के साथ में ये थिरकते हुए नन्हे बच्चे आने वाले दिनों की बात बताते हैं. ये कहते हैं कि हम अपनी सेना के साथ हैं, सेना के ख्यालों के साथ हैं, विचारों के साथ हैं, देश के साथ हैं, और ये मुस्कुराहट यही बताती है, शक्ति देती है. ये सिर्फ आनंद नहीं हो रहे हैं, इनके आनंद के साथ साथ यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शक जो हैं वो भी आनंदित हो रहे हैं, और एक समूह नृत्य सा यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो सभी को बहुत भा रहा है. और शाम जी ये बड़ा अच्छा लगता है देखिए, क्योंकि हमने फाइटर प्लेन्स देखे, हेलीकॉप्टर्स देखे, वॉरशिप्स देखे, तो ये थोड़ा अच्छा सा नाच और गाना, और इतनी अच्छी क्वालिटी का नाच और गाना जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऐसा बहुत कम देखने मिलता है. जो सिंक्रोनिसिटी है उनकी बहुत कम देखने मिलती है. जी हाँ,
कैडेट कोर जो हैं, इनकी यही विशेषता है। ये इसलिए बहुत लोकप्रिय, मैंने जैसे कि पहले ही कहा आपको। देखिए उनके मूव्स, देखिए किस तरह से, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, उनका ड्रेसअप देखिए, और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो शारीरिक क्षमता है, वो आगे आने वाले दिनों की ओर इशारा कर रही है कि देश मजबूत बच्चों से नौजवानों तक पहुंचने जा रहा है। Yes, indeed, and they're performing very simple steps, but what is important is they're all performing it together with perfect timing, with the beat, and with their hands and feet moving at the same time. And of course, all of them, there's one thing common, they've all got a big smile on their face, which always makes any dance look better and feel better. यहाँ देख रहे हैं आवाज़ों के साथ साथ जोश को वो भी बढ़ा रहे हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पर तमाम दर्शक जो हैं उसी जोश में अपने आप को पा रहे हैं। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, ये यहाँ के सुपरस्टार हैं, और जिन सुपरस्टार्स के लिए नई जो है तालियां, नया उत्साह, बिल्कुल। Yes, they've got a thunderous round of applause for a good reason, for a fantastic performance there. The hornpipe dance as they make their way off the stage with a terrific performance that we saw, and I'm sure everybody present here enjoyed it thoroughly. We could also see a big smile on the Honorable Prime Minister's face as he watched that performance of the Sea Cadet Corps and applauding the youngsters there, encouraging them, and I'm sure it means देवी a और lot सज्जनों, to all the performers. टैटू ड्रमर्स जो हैं वो यहाँ पर अब आ रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि युद्ध के बाद में जो आदेश दिया जाता है कि आप अपने हेडक्वार्टर्स की ओर आ जाएं, बस उसी का है। और ड्रम्स के साथ ड्रिल और दक्षता की जुगलबंदी जो है यहाँ पर आपको दिखलाई जाएगी। प्रस्तुत है और इंडियन देखने नेवल, वाला मंत्रमुग्ध होता है, अचंभित होता है, विस्मृत हो जाता है। The Indian Naval drumming team now, they are going to perform the Tattoo Drummers Call, which basically is played during the end of the day as the last part or the last segment of the day's events. And there we can see lots of drummers there. There are about 10 to 12 members of the naval band there, drums and cymbals as well, who are performing the Tattoo Drummers Call. And as we said, that signifies the end of the day. That means the evening is coming to an end shortly, but not yet. बिल्कुल आपने ये सही कहा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये अपने श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना न केवल उच्चतम पेशेवर बल्कि अंतिम लोगों के संचालन में भी निहित है। वो सभी से अपने आप को जोड़ती है यहाँ पर, बल्कि परंपरा में भी केंद्रित है। अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं शानदार टैटू समारोह जो सभी को यहाँ पर मंत्रमुग्ध कर रहा है। एक सैन्य टैटू संगीत प्रदर्शन ये सामान्य रूप से सशस्त्र बलों का प्रदर्शन है। वर्षों से ये प्रक्रिया नौसैनिक परंपराओं का एक अभिन्न अंग बन गई है और अक्सर राष्ट्रीय महत्व के औपचारिक अवसरों पर प्रदर्शित की जाती है। मैं यहाँ पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके सामने जो प्रदर्शन हो रहा है, हमारे सामने जो प्रदर्शन हो रहा है, वो वर्षों के समर्पण और कठोर अभ्यास का परिणाम है। सचिन जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। Not only does the Indian Navy root itself in operations of the highest professional standards, but it is also centered around tradition. And as we watch the spectacular tattoo ceremony, it is leaving us mesmerized. And a military tattoo is a performance of music or a display of armed forces in general. Now, over the years, the process has become an integral part of naval traditions and is often displayed at ceremonial occasions of national significance, like today, the 4th of December, when Navy Day is celebrated. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो है टैटू ड्रमर्स हैं और यहाँ ये संगीत की स्वर लहरियाँ जो हैं गूंज रही हैं और हम देख पा रहे हैं कि उनके पीछे में लहरें आ रही हैं, उनको छूने का प्रयत्न कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन टैटू ड्रमर्स को ये पूरा समुद्र सुनना चाहता है, ये लहरें जो है उन तक पहुँचना चाहती हैं और इस संगीत में अपने सुरों को भी मिलाना चाहती हैं। Yes, indeed. We can see the waves of the sea behind in perfect harmony here, along with the naval drummers here who are performing the Tattoo Drummers Call. As you said, they are all drummers there, and a couple of them are holding cymbals as well. And this is one of the last events of the evening. It's a traditional performance, as we just explained, that has been carried over for several decades now here.
as all the people who have gathered here at the Tarkarli beach for the Navy Day celebrations are witnessing a mesmerizing performance by the naval drummers. देश विदेश के दर्शक, अधिकारीगण, यहाँ पर मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं और इस पूरे आयोजन का वो आनंद भी ले रहे हैं और इस जश्न को मनाने में अपनी ताकत जो है इन्हें बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अंधेरा थोड़ा सा और बढ़ गया, अंधेरे के बीच अंधेरा, लेकिन बजते हुए ड्रमर्स के बीच में रोशनी हो रही है। Yes, there's a beautiful show of lights here as all eyes are on the drummers here on the stage who are performing the Tattoo Drummers Call. And once again, as everything has happened this evening, as everything that happens with Navy, everything happens with clockwork precision and with great synchronicity. ये सामंजस्य है जो ये बताता है कि कला के साथ में युद्ध कौशल का होना भी जरूरी है और युद्ध कौशल के साथ में भावनाओं का भी रहना Ladies and gentlemen, और इस भावना का भी जो देशभक्ति की ओर हमें ले जाती है, हमें यह बताती है कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। Yes, and we can see the tattoo drummers, naval musicians taking a right and walking off stage. And as we mentioned, the Tattoo Drummers Call signifies the end of the day, the last part of the proceedings. And now we can see the naval band making its way to the center. Lights are being brightened here. Earlier we saw that the lights were put off when the Tattoo Drummers Call was being performed. But now all the lights here have come on. And soon we'll have the ceremonial sunset which will take place in a few moments from now. This is a part of the naval tradition as well, the sunset ceremony. प्रक्रिया के लिए मंच पे आ गया सूर्यास्त की है। जो प्रक्रिया है सनसेट सेरेमनी जो है यहाँ पर अपनाई जा रही है। यहाँ पर बैंड के जो सदस्य वो यहाँ पर पहुँच गए और सैन्य कथा यही कहती है कि युद्ध जब होता है और युद्ध के बाद विराम जब होता है तो जो झंडे हैं वो ध्वज जो हैं उन्हें जो है उतारा जाता है ससम्मान और फिर दूसरे दिन उन्हें चढ़ाया जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्षेत्र की विशेषता भी है और यही प्रक्रिया भी है। Yes, let me describe the setting here once again. It's pitch dark here in the background. It looks like there's been a fade out. It's completely black in the background. We can't see a single ship right now, but the place, the venue here is fully lit. And the sunset ceremony is taking place as the flags are being lowered. The army insignia as well as the tricolor is slowly being lowered here. And soon we will have the national anthem as a part of the Navy Day celebrations here. जी हाँ, और हम देख पा रहे हैं कि ये जो आज का उत्सव है ये समापन की ओर है। देवियों और सज्जनों, शीघ्र ही राष्ट्रीय गान के लिए तैयार रहें। कृपया अपने स्थानों As the पर। tricolor is being folded along with the Navy flag, we could see all the army men, all the Navy men, all defense personnel here saluting the flag. And now we'll have the national anthem.
And we were talking about synchronicity, we were talking about precision the whole evening. And when we were saying that the sky was looking black, the horizon was looking dark, as soon as the national anthem got over, all the warships here from the Indian Navy, the lights have come on, they are sending out flares, and this is quite a spectacular sight. So all the ships on the horizon there with terrific timing, with terrific precision, the lights have come on as soon as the national anthem ended, and it is one of the most beautiful sights to behold. And what a wonderful evening it has been. We saw some spectacular display from the Navy in the presence of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and other dignitaries as a part of the Navy Day celebrations. जी हाँ, हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने क्षितिज पर जो हैं, जो हमारे नौसेना के जहाज हैं, वो रोशन हो गए हैं और उन्होंने रोशनी बिखेरी है। और यहाँ पर नौसेना दिवस की जो है जय की जा रही है, भारत माता की जय की जा रही है। और निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन जो हैं हमें गर्व से भर देते हैं और हमें ये बताते हैं कि हम जो हैं अपने देश में रहते हुए अपने सैनिकों, अपनी सेना के तहत सुरक्षित हैं, संयमित हैं, भविष्य को अपने बनाने लायक हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है आज के इस कार्यक्रम की जो सजीव जानकारियाँ थी जो आप तक हम पहुँचा रहे थे, तो मैं आपसे इजाज़त लूँ। तारकर्ली महाराष्ट्र के इस समुद्री तट पर जो है आज नौसेना दिवस मनाया गया है, जिसमें विशेष रूप से उपस्थित रहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और अब मैं यहाँ पर इस सजीव प्रसारण के लिए सहयोग के लिए कार्यक्रम अधिकारी सुजाता काहलेकर, प्रसारण अधिकारी योगी राज बच्चे, तकनीकी सहयोगी प्रकाश अकोलकर, प्रकाश वराटकर, प्रवीण शिंदे, मोहन कावले, प्रमोद कुमार और रविंद्रन को यहाँ पर बतलाना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि ये आकाशवाणी सिंधु दुर्ग नगरी केंद्र की निर्मित है और इस कार्यक्रम का जो है संचालन यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो हमें यहाँ पर मदद पहुँचाई है और जो कुछ भी हमारे लिए यहाँ पर इस प्रसारण को आप तक पहुँचाने में ज़रूरी था, उसे करने के लिए हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं सिंधु दुर्ग नगरी जो आकाशवाणी है उसके श्रीपाद काहलेकर जी थे इस पूरे कार्यक्रम के संचालन करता। और इसी के साथ मैं जी शाम अपने कमेंटेटर साथी सचिन चट्टे के साथ इजाज़त लेता हूं और आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज लिए चलता हूं। नमस्कार। अभी आप तारकर्ली सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए भारतीय नौसेना दिवस समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे जी शाम हिंदी में और सचिन चट्टे अंग्रेजी में। You were listening to a live broadcast of function organized on occasion of